सो क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट हमने अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला यूनिट ख़त्म कर लिया था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ईजी चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक है जो मतलब आपको पढ़ने का फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. Even for a human, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. It means when an alien comes from a distant galaxy and he visits to our planet, what was the first thing he observed and amazed and probably that is our diversity, right? Diversity and life. Next thing is, even for the human, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 33 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. So, as we know that our Earth and our Earth is a very complex planet. We can say that it contains a very large and huge amount of species all over the world, right? In our world, there are almost 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes, and the 20,000 species of orchids. Now, then, the ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. So, ecologist and evolutionary biologist. So, this two word is a very important that you have to understand that ecologist और biologist ये दोनों होते क्या है, मतलब कौन होते, राइट। तो इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है, जो बायोलॉजिस्ट होता है, राइट, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स जितनी है, मतलब लिविंग डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड की, उसके बारे में स्टडी करता है। एंड एकोलॉजिस्ट जो होता है, ये हमारी एकोलॉजी मीन्स हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हमारे मतलब वो है स्पीशीज़, उनका हैबिटेट, उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी, उनकी जो भी मतलब एडेप्टेशंस हुआ है, तो पास्ट टाइम में वो कैसे थे, अभी कैसे प्रेजेंट में उनकी कंडीशन है, फ्यूचर में क्या हो सकता है ना, उनकी स्पीसीज़ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो इसके बारे में स्टडी जो करता है वो एकोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अराइजेज होते हैं, जैसे कि वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, मतलब क्यों इतनी सारी स्पीसीज हर प्रजातियों की है फॉर द वाइल्ड, कि जैसे चींटियों की 20,000 स्पीसीज है तो ऐसा क्यों, बीटल की 3 लाख स्पीशीज है तो ऐसा क्यों, है ना। Did such great diversity exist throughout the Earth's history? How did this diversification came about? How whom how and why is this diversity important to the biosphere? Why it function any differently if the diversity was much less? How do humans benefit from the diversity of life? So this type of question arises in our mind, and that's because we are going to understand this chapter and study this chapter to get the answer of such questions, right? So our first topic is a biodiversity. So what is a biodiversity? First of all, we have to understand the base of this thing, है ना. So in our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all the level of biological organization, ranging from macromolecule within the cell to biomes. इट मीन्स ये है कि हमारा जो बायोस्फीयर है, एक इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, मीन्स हेट्रोजेनिटी, जहाँ पे अलग अलग जीन्स के अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती है, राइट। नॉट ओनली द स्पीशीज़ लेवल पे ही हमें देखने को नहीं मिलता है, पर कई बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेंजिंग करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल विद इन द सेल्स टू बायोम। मतलब आप देखेंगे कि कई सारे पेड़ पौधे हैं, हाँ। अगर आप एक फॉर एग्जांपल आपको एक फ्रूट ले लें, फॉर एग्जांपल मैंगो, आपको मैंगो की ही कितनी सारी स्पीशीज़ देखने को मिल जाती है, राइट। तो इस तरीके से हर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हमारे अर्थ में प्रेजेंट है फॉर वाइल, तो हर किसी की हमें एक स्पीशीज़ कैटेगरी देखने को मिल जाती है। Biodiversity is the term popularized by the sociologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the level of biological organization. तो जितने भी biological organization पे combined diversities है, उससे explain करने के लिए, है ना, उन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी, और ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या टर्म्स और क्या क्या कंबाइंड डाइवर्सिटीज़ के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया।
तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो थी वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और फर्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? अ सिंगल species might show high diversity at the genetic level over its distributional range। यहाँ बता रहा है कि एक जो सिंगल प्रजाति मतलब एक सिंगल स्पीशीज़ है वो उसकी भी एक अगर आप देखो तो बहुत हाई डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है उसके जेनेटिक लेवल पे। इट मीन्स उसके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज हमको देखने को मिलेगी। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया। मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। Growing in different Himalaya ranges might be in terms of potency and the concentration of the active chemical rasparine that the plant produce। यहाँ ये बता रहा है कि एक स्पीशीज़ है जो कि डिफरेंट हिमालयन रेंज में देखने को मिलती है और माइट बी इन द टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल। और इनके अंदर कुछ खास तरीके के केमिकल होते हैं जैसे कि यहाँ पे नाम दिया उस केमिकल का रेस्पराइन केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूस जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना ही सिर्फ मतलब ना ही सिर्फ एनिमल्स बल्कि प्लांट्स में भी हमको स्पीशीज़ देखने को मिलती है डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल जैसे 50,000 स्पीशीज़ है हमारी स्ट्रेन्स की देखने को मिल जाती है चावलों की अगर आप देख लो है ना। 1,000 स्पीशीज़ हमको मैंगो की देखने को मिल जाती है ऑल ओवर द हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है ये तो थी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी को इन्होंने डिफ्रेंशिएट करा। सेकेंड है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के बेसिस पे हम देखते सो द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेट एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट। मतलब अगर हम स्पीशीज़ लेवल पे देखें तो फॉर एग्जांपल हमारा जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ग्रेट एम्फीबियन स्पीशीज़ देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। Our next topic is ecological diversity. At an ecosystem level, India, for instance, with its desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetland, estuaries, and alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। ये बता रहा है कि एकोलॉजिकल वे में देखिए लेवल पे तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की मतलब हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जैसे रेगिस्तान हो गया है ना, बारिश रेन फॉरेस्ट हो गए, मैनग्रोव ट्रीज हो गए है ना, राइट। कोरल रीफ वाले अलग है, वेटलैंड्स अलग है, यूस्टेरिस अलग है, अल्पाइन मीडोज अलग है। तो इनकी भी एक ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज़ है जहाँ पे अलग अलग तरह की प्रजाति के जानवर सर्वाइव करते हैं। जैसे कि डेजर्ट में आप देखोगे तो डेजर्ट में रेटल स्नेक रहते हैं है ना, और जैसे आपकी स्कॉर्पियंस रह गए। तो इस तरह के जो जानवर है जो इस तरह की हॉट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, अडॉप्ट है मतलब उन्हें रहना पसंद है। या अगर आप रेन फॉरेस्ट के लिए देखोगे तो रेन फॉरेस्ट में अलग स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमें अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग एडाप्टेशन और एकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी लेवल पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये जो प्रोसेस हुई है जिसके कारण हमारे अलग अलग नेचर में अलग अलग तरह के वातावरण बने, अलग अलग एनवायरनमेंट बने है ना, अलग अलग स्पीशीज़ बनी। तो ये कोई तुरंत का काम नहीं था, इसमें कई मिलियन ईयर्स लगे तब जाके एक रिच डाइवर्सिटी हमारी नेचर को मिली है, राइट। बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries। पर हमने ये जो पूरी वेल्थ है मतलब जितनी हमारी स्पीशीज़ है अलग अलग नेचुरल कंडीशंस एकोलॉजिकल जेनेटिकल स्पीशीज़ लेवल पे जो हमारी डाइवर्सिटीज़ थी हम इसे धीरे धीरे लूज़ कर रहे हैं है ना। इन लास्ट 2 centuries में हमने बहुत कुछ खोया है हमारी वेल्थ में है ना। इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज़ लूजेस कंटिन्यू, और इस तरीके से अगर चलता रहा तो आगे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी फूड चेन और जो फूड वेब है आप जो अपने बचपन में पढ़े होगे अपनी पास्ट क्लास में है ना, तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है और इस तरीके से पूरी एक चेन चलती है, फूड चेन है ना। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म भी उस चेन से अगर हट जाए या उसकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी पूरी नेचर में। आगे लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। कि बायोडाइवर्सिटी और अब इसका जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मीन्स इसका रख रखाव, इसे बचाना है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी एनवायरमेंटल इशू बन चुका है। ना ही सिर्फ हमारे सिर्फ स्टेट या कंट्री लेवल पे, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है ना, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है ना।
और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बचाने के लिए मतलब अपनी अलग अलग तरह से कोशिशें मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पता होनी चाहिए, है ना, कि हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारे प्लेनेट को कितने मतलब हमारे प्लेनेट को कितने अच्छे से मतलब स्टेबल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जिस दिन हमको अनुभव हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस कर लेंगे कि हमें पता चल आएगा कि हाँ इतनी, तब हम जाके इसे अच्छे से कंजर्वेशन की मेथड्स को हम समझ पाएंगे और इसे कंजर्व करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो यहाँ बोल रहा है हमारे अर्थ में कितनी स्पीशीज़ है और हमारे इंडिया में कितनी स्पीशीज़ है। देखिए कि सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीशीज़ डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो दैट how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth। मतलब ये बता रहे कि अभी तक के जितनी रिकॉर्डेड स्पीशीज़ जो डिस्कवर्ड हुई हमारे अर्थ में, जिनको नाम दिया गया है, इनके बारे में तो हम जानते हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है भी, पर हम क्लियर नहीं कह सकते कि कितनी स्पीशीज़ हमारे अर्थ में, क्योंकि ऐसी भी आज कई प्रजातियाँ हैं जो हमें कई बार, अभी आपने 10 या 20 सालों के बीच में देखे हुए कई सारी नई नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है, जानवरों की, कीड़ों की, है ना, जितने भी तरह के स्पीशीज़ है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सबकी एक एक नई नई स्पीशीज़ कभी ना कभी हमें देखने को मिल जाती। तो हम 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते कि हमारे अर्थ में इतनी ही स्पीशीज़ होगी इस जानवर की या इस प्लांट की, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसका फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे याद करिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान से समझिए। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन बनाया गया है जो हमारे नेचर को कंजर्व करता है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम नाम बोलते हैं IUCN, जो कि 2004 में बनाया गया था, ठीक है। The total number of planet and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ और प्लांट हमारे डिस्क्राइब किए गए अभी तक के स्लाइटली, है ना, वो लगभग 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा ही है, राइट, 1.5 मिलियन से ज़्यादा। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। पर हमें ये कोई आइडिया नहीं कि हमारी कितनी स्पीशीज़ और है जो हमने डिस्कवर्ड की है और हमने उसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आगे दिया है कि एस्टिमेट वेराई वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेस। जो भी हमारे पास अभी है वो हमारे एक गैसिंग है, एक तरीके से हमारे एजुकेशन के लेवल पे हमने गैसिंग की है, ठीक है। फॉर मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट in temperate than in tropical countries, considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics। कि हमारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप में जो स्पीसीज़ है इसके बहुत सारे इन्वेंटर्स, मतलब आप बोल सकते हैं इन्वेंटर्स लोग आए जिन्होंने इसे फाइंड किया है, ठीक है, और इसे कंप्लीट किया है, चाहे वो टेम्परेट रीजन हो या ट्रॉपिकल रीजन हो, राइट। पर हम कंसिडर करें तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज़ आज भी वेटिंग पे है, जिसे डिस्कवर करना बाकी है, कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में और कुछ टेम्परेट रीजन में भी, ठीक है। बायोलॉजिस्ट make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to the other group of animal and plant to come up with a gross estimate of the total number of species on earth। ठीक है, कि बायोलॉजिस्ट ने एक कंपैरिजन के बेसिस पे टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो स्पीशीज़ होती है ना, उनके वहाँ के वातावरण के रिचनेस के कारण, मतलब उसको ध्यान पे रखते हुए उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को अलग किया, राइट, कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट उन्होंने बनाया, राइट, वैसी एंड एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशियो टू द ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। और इस तरीके से उन्होंने एक रेशियो तैयार किया कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स का और कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स का, ठीक है, विद अ ग्रॉस एस्टिमेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। तो और इस तरीके से उन्होंने ग्रॉस आप बोल सकते हो दोनों का रेशियो निकालने के बाद एक हमें एक वो बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आंसर दिया है कि हाँ इतनी स्पीशीज़ पर्टिकुलर एनिमल, प्लांट या इंसेक्ट की हमारे अर्थ में है। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 मिलियंस, कुछ रेंजेस 20 से 50 मिलियन तक के हैं। बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। पर एक ज़्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली जो एस्टिमेट दिया गया था रॉबर्ट मे ने जिसे दिया था, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे अर्थ में लगभग 7 मिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट है
Let us look at some interesting aspect about Earth's diversity based on the currently available species inventories. कि कुछ हमारे स्पीशीज़ जो आज तक के खोजी गई है उनके बेसिस पे कुछ यहाँ पे एक हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया, राइट। तो ये समझ लेते हैं, कुछ एक्सपेक्ट है हमारे सामने कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल। मतलब जितनी भी स्पीशीज़ आपने ढूंढी है उसमें से 70% एनिमल की स्पीशीज़ है, वाइल प्लांट्स और जबकि जो प्लांट्स जैसे जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्राइजेज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। मतलब बचे हुए 22% जो है इनसे ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ नहीं है प्लांट की, ठीक है ना। प्लांट की कौन कौन सी स्पीसीज़, जैसे एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। याद रखिए कि अभी तक के 70% जो स्पीशीज़ है वो आउट ऑफ 100 वो एनिमल की स्पीशीज़ है हमारे अर्थ में रिकॉर्डेड की गई है, और बची हुई 22% जो स्पीशीज़ है वो प्लांट की रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। अमंग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीशियस रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। और जानवरों में सबसे ज़्यादा यहाँ बता रहे हैं इंसेक्ट की जो स्पीशीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप कहलाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है अर्थ में, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, ठीक है। तो पूरे 70% में से सबसे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो किसकी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, इंसेक्ट की। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। इसका मतलब ये हो कि जितने लगभग 10 एनिमल में से 7 जो है वो इंसेक्ट आते हैं हमारे अर्थ में। अगेन फिर से, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। तो अब हमने इसे कैसे हमारे जो इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन है इसे कैसे हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसका आंसर है कि द नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। यहाँ बता रहा है कि जो नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज है, मतलब फंगाई स्पीशीज का जो नंबर है पूरे वर्ल्ड में वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल के इंक्लूडिंग। मतलब फंगाई की स्पीशीज़ का कंपैरिजन दिया जाए किसके साथ, इन कंपैरिजन फिशेस, एनिमल, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल की स्पीशीज़ के साथ, तो फंगाई का स्पीशीज़ का कंपैरिजन, राइट। नेक्स्ट आगे लिखा है कि यहाँ पे इन फिगर 15.1 बायोडाइवर्सिटी इज डेपिक्टेड शोइंग स्पीशीज़ नंबर ऑफ मेजर टैक्सा। तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट तीनों की स्पीशीज़ का एक हमारे सामने एक रिप्रेजेंट दिया गया है ना, जिससे हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनवर्टिब्रेट में जैसे कि आपका फ्लाई हो गए, इंसेक्ट हो गए ना, वर्म्स हो गए, तो इनका बता रहा है देखो इंसेक्ट की कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है इसने कवर करा है। येलो पोर्शन जो है वो बता रही है जिसमें इंसेक्ट की पूरी स्पीशीज़ है। इंसेक्ट की स्पीशीज़ में जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट, फ्लाइज और वर्म्स होते हैं। इसके बाद उसके बाद जो सेकंड है वो एनिमल ग्रुप ने एक्वायर किया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है मोलस्क, और लास्ट में क्रस्टेशियन जो कि सबसे कम है इनवर्टिब्रेट में, ठीक। वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें तो फिशेस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेप्टाइल, एंड देन बर्ड्स, एंड देन मैमल, लास्ट में एम्फीबियंस, ठीक है। प्लांट्स में आप जाएंगे तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा, अगर आप सबसे ज़्यादा तो नहीं, इक्वली आप देखोगे तो फंगाई और एंजियोस्पर्म का आ रहा है, पर फंगाई का ज़्यादा है रेशियो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एल्गी, एंड देन मोसेस एंड देन फर्न एंड एलाइस, और लास्ट में लाइकेंस। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्रेजेंटेशन हमें दिया है कि जिससे हम आसानी से इन्हें समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट दिया है द रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ प्लांट, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये सबके टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, मेजर टेक्सा जिसको बोलते हैं हम, जिसमें हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट ग्रुप में वर्टिब्रेट और प्लांट्स, तो इनको कैसे डिवाइड किया गया है कि इनकी स्पीशीज़ कैसे डाइवर्सिफाइड है, राइट। नेक्स्ट आगे लिखा है इट शुड बी नोटेड दैट दिस एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट। तो इस एस्टिमेट से हमें पता चला है कि कोई भी फिगर में आपको प्रोकैरियोट देखने को नहीं मिला है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीशीज देयर माइट बी। तो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि बायोलॉजिस्ट अभी तक श्योर नहीं है कि कितनी प्रोकैरियोट की स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। द प्रॉब्लम इज दैट द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड है इन्हें फाइंड करने की, वो सुटेबल नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर सके इतने छोटे माइक्रोबियल स्पीशीज और छोटे छोटे और अनदर स्पीशीज को, है ना। एंड आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में इन्हें हम स्टडी नहीं कर सकते। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity along might run to into millions।